Good morning, students. Today we will see the another revision of the some important points for bearing, continuing to the last lecture. Okay, in last lecture we have seen the different types of bearings for sliding contact bearing and some important assumptions for hydrodynamically lubricated bearings and what. So now let's move further. So first, we will see the important terms that are used in hydrodynamic general bearing. In right hand side, you can see the diagram of a hydrodynamic general bearing. Let me tell you the main points, main things of that bearing. The outer circle you are watching is for the bearing itself, and the inner circle, that the white one you are watching, it is the journal. Initially, when there is no load condition at that particular time, both the centers O and O dash are at the same point. Okay, when we applied the load W, the O get deflected from a certain distance, and the new sign O dash set reflected to a certain distance, and it goes through the O. So in a hydrodynamic journal is shown in this figure, we can see that O is the center of the journal. This point is the center of the journal, and O dash is the center of the bearing. Okay, then W is the applied load. Now, capital D is the diameter of the bearing, small d is the diameter of the journal, and small l is the length of the bearing. Okay, now, first term that is used is the diametral clearance. Now, it is a difference between the diameter of the bearing and the journal. Mathematically, we can say that the diametral clearance C is equal to capital D minus small d. Now, second one is the radial clearance. It is the difference between the radii of the bearings of the journal. Mathematically, it is represented by small c1, which is equal to capital R minus small r, or we can say it as capital D minus small d by 2 or c by 2. Now, next is the diametral clearance ratio. It is the ratio of diametral clearance to the diameter of the journal. Means this is mathematically just represented by C upon D ratio. Okay, so small c upon small d, it is known as the diametral clearance ratio. Now, next is the eccentricity. It is the radial distance between the center O of the journal and the displaced center O dash of the bearing under the load. Okay, so O dash और O के बीच का जो distance रहेगा, radial distance रहेगा, that is particularly known as the small e, which we can say the eccentricity. Now, the minimum oil film thickness, it is the minimum distance between the bearing and the journal under the complete lubrication condition. Okay, जर्नल और बेयरिंग के बीच का ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसमें कंप्लीट लुब्रिकेशन कंडीशन में जो डिस्टेंस आता है, दैट इज नोन एज द मिनिमल ऑयल फिल्म थिकनेस. इट इज डिनोटेड बाय HO. ओके, एंड इट अकर्स एट द लाइन ऑफ द सेंटर. सेंटर्स की लाइन को अगर जो अपन मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, एट दैट पॉइंट ये अपने को लाइन मिलती है. नाउ, next is the attitude or eccentricity ratio. Now, it is the ratio of hydrodynamic journal bearing. It is the ratio of the eccentricity to the radial clearance. Sorry, I will just mention the hydrodynamic general bearing. It is the ratio of the eccentricity to the radial clearance. Mathematically, the attitude or eccentricity ratio is given by the epsilon, and it is E upon C1. Okay, this is given by E upon C1. So E को मैं लिख सकता हूं C1 माइनस HO. देखो, जो E डिस्टेंस है, अगर मैं E की यहाँ पे बात करूं तो E लेके मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है. ठीक है, लेट्स सी, E इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये डिस्टेंस है मेरा E. ठीक, अब C1 की अगर अपन बात करें तो C1 माइनस HO अगर मैं देखूं तो C1 जो है वो इस रेडियस से इस रेडियस के बीच का डिफरेंस है. ठीक है, C1 जो है वो R से R के बीच का डिस्टेंस है, और अगर उस डिफरेंस में से मैं HO को माइनस कर देता हूं, देन मेरे को E की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी. सो दैट्स व्हाई
E is equal to C1 minus HO upon C1, और we can say 1 upon HO minus C1 और 1 minus 2HO upon C. ये अपना eccentricity ratio हो जाता है. Next thing is the short and long bearing. Now, if the ratio of the length to the diameter, that is L upon D ratio, is less than 1, then the bearing is said to be short bearing. अगर length और diameter का ratio एक से कम है तो bearing short bearing कहलाएगा. अगर L upon D ratio it is greater than 1, then the bearing is known as the long bearing. It will if L upon D is ratio greater than 1, the bearing is long bearing, and if L upon D is equal to 1, then the bearing is known as the square bearing. ठीक है, L upon D रेशियो के बेसिस के ऊपर अपन लॉन्ग, शॉर्ट और स्क्वायर बेरिंग को डिफाइन करते हैं. Now next, the very important topic, it is the coefficient of friction. Now coefficient of friction, bearing characteristic number and bearing modulus for the journal bearing. These three things are very important because these all three are interrelated. Now the coefficient of friction in design of bearing is the great importance because it affords a means of determining the loss of power due to bearing friction. ठीक है, जो coefficient of friction है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो bearing से पावर फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉस है उसे कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से अपन ने इसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई की है. वी हैव आइडेंटिफाइड द एक्सपेरिमेंट्स दैट फुल lubricated bearing, full lubricated journal bearing, the coefficient of friction is a function of three variables. First one is Zn upon P, second is D upon C, and third is L upon D. इन तीन चीजों का एक फंक्शन होता है जिसका कि आपका इन तीन वेरिएबल्स का एक फंक्शन है जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो आई कैन राइट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज म्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ Zn अपॉन P, D upon C, L upon T, where mu is the coefficient of friction, phi is a functional relationship, Z is the absolute viscosity of lubricant in kg per meter second, N is the speed of journal in RPM, P is the bearing pressure on the projected bearing area in Newton per mm square. So P is equal to load on the journal divided by L into D. This one is the pressure. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने लायक है कि Zn upon P मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर सेकेंड में है, and the pressure is in Newton per mm square. Small d is the diameter of the journal, L is the length of the bearing, and small c is the diametral clearance. So इन तीन चीजों के फंक्शन से अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बनता है. Now let's see further. Now coefficient of friction. Now coefficient of friction में जो term है Zn upon P, it is termed as the bearing characteristic number. The term Zn upon P is generally represented bearing characteristic number, and it is a dimensionless number. ठीक है, the variation of coefficient of friction with operating values of bearing characteristic number Zn upon P are obtained by Mackey brothers, okay, in actual test of friction as shown in the figure. Okay, the Z upon P helps to predict the performance of the bearing. ठीक है, Z upon P की जो वैल्यूज है उसके बेसिस के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ऑपरेटिंग वैल्यूज को अपन ने प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई किया है. मैकी ब्रदर्स ने आइडेंटिफाई किया था, जिसके बेसिस के ऊपर ये उन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ राइट हैंड साइड में आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज गिवन बाय द मैकी ब्रदर्स, दिस ग्राफ. ओके, सो from the figure we can see the minimum amount of friction occurs at point A. इस point A पे minimum amount of friction आ रहा है. ठीक है, and this value at this point, the value of Zn upon P is known as the bearing modulus. जहां पे मिनिमम फ्रिक्शन होता है वहां पे Zn upon P की वैल्यू को ही अपन बेरिंग मॉडुलस रिप्रेजेंट बोलते हैं. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि Zn अपॉन P को ही हम बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर बोलते हैं, और Zn अपॉन P की एक सर्टेन वैल्यू जहां पे कि फ्रिक्शन मिनिमम होता है. ठीक है, वेयर वी कैन सी द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है उसको अपन बेरिंग मॉडुलस बोल देते हैं, विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल K. Now the bearing should not be operated at this value because at this value of bearing modulus, because a slight decrease in speed or a slight increase in pressure will break the oil film and make the journal to operate with metal to metal contact. अपन लोग कोशिश करते हैं कि bearing modulus
जो अपना बैरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है वो बैरिंग मॉडुलस की इस वैल्यू के ऊपर ऑपरेट ना करे। जो हमारा बैरिंग है वो इस बैरिंग मॉडुलस पे ऑपरेट ना करे, बैरिंग की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ऑपरेट ना करे, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी आपकी क्या बोलते हैं, तो जो प्रेशर है, प्रेशर में अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है या स्पीड में थोड़ी भी डिक्रीज होती है तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट बढ़ जाता है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट जैसे ही इंक्रीज हुआ, वहां पे अपना जो है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बैरिंग को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट इन हाई फ्रिक्शन, वियर एंड हीटिंग। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कंडीशंस, द बैरिंग शुड डिजाइन फॉर अ वैल्यू ऑफ Zn अपॉन P एट लीस्ट 3 times द मिनिमम वैल्यू ऑफ बैरिंग मॉडुलस K। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि बैरिंग को इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि जो बैरिंग मॉडुलस, जो बैरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर है Zn अपॉन P की वैल्यू एटलीस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए बैरिंग मॉडुलस K की। मींस, ठीक है, Zn अपॉन P की वैल्यू 3K के बराबर होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक। नाउ इफ द बैरिंग इज सब्जेक्टेड to the large fluctuation of load and heavy impacts, then the value of Zn upon P is equal to 15K may be used. Large fluctuations के लिए, heavy loads के लिए अपन sometimes 15K use कर लेते हैं. Now, from above, it is concluded that when the value of Zn upon P is greater than K, then the bearing will operate with thick film lubrication and under hydrodynamic conditions. ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं कि अगर Zn अपॉन P की वैल्यू K से ज्यादा है तो फिर वो अपना थिक फिल्म कंडीशंस में ऑपरेट करेगा, है ना। सो अदर वी कैन से अगर K से कम होती है तो ऑयल फिल्म का रैप्चर और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट वहां पे रहेगा। ये चीज फिक्स है Zn अपॉन P की वैल्यू से। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट जब भी हम बैरिंग को डिजाइन करते हैं उस टाइम पे जो उसके Zn अपॉन P की वैल्यू है उससे अपन लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रखना पड़ता है बैरिंग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के, वैल्यू बैरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर को बैरिंग मॉडुलस की एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर जनरल बेयरिंग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, in order to define coefficient of friction for well lubricated full journal bearing, the following relation given by the Mackey on the basis of experimental data may be used. इस पर्टिकुलर म्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है where mu is equal to 33 upon 10 to the power 8 Zn upon P to D upon C plus small k, when Z is in kg per meter second and P is in Newton per mm square। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है कि Z को मुझे kg पर मीटर सेकंड में लेना है और P को न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेना है। नाउ where Z is equal to absolute viscosity of lubricant in kg per meter second and is the speed of journal in rpm, P is equal to bearing pressure on the projected bearing area Newton per mm square, we can say it is equal to load upon journal, load of the on the journal into divided by L into D. So small d is the diameter of the journal, small l is the length of the bearing, and small c is the diameter clearance. Now, the another thing is over here, which is small k, which we can say the factor to correct for end leakage. एंड लीकेज के लिए करेक्शन फैक्टर अपन k का यूज करते हैं। k की जो वैल्यू है वो l अपॉन डी रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। एल अपॉन डी रेशियो की वैल्यू अगर 0.75 से 2.8 के बीच में है, सो इस केस में जो के की वैल्यू है वो अपन लेते हैं 0.002। ठीक है, अगर एल अपॉन डी 0.75 से 2.8 के बीच में है, सो के विल ऑलवेज बी टेकन एज 0.002। Now, the operating value of Zn upon P should be compared with the values of table given in design data book to ensure the safe margin between the operating conditions and the point of film breakdown। अब डिजाइन डेटा बुक से हमें Z अपॉन P की वैल्यू देखनी होती है जिसके बेसिस के ऊपर अपन लोग उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग वैल्यू फाइनलाइज करते हैं। सो अब टेबल कौन सी है, दिस इज द टेबल। ये आपको डिजाइन डेटा बुक में मिल जाएगी, पीएसजी या महादेव रेड्डी दोनों में आपको ये टेबल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर द मशीनरी। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की मशीन्स के नाम दिए हुए हैं, रेलवे कार्स, स्टीम टरबाइंस, जनरेटर मोटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ट्रांसमिशन शाफ्ट, मशीन टूल्स, ठीक है, पंचिंग एंड शेयरिंग मशीन्स, रोलिंग मिल्स, ये डिफरेंट मशीन्स दी हुई हैं।
और यहाँ पे सामने उन मशीन्स के बैरिंग्स दिए हुए हैं। एक्सेल का बैरिंग है, रेलवे कार्स का, स्टीम टरबाइन का मेन बैरिंग है, जनरेटर सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटर का बैरिंग है, ट्रांसमिशन शाफ्ट में लाइट ट्रांसमिशन शाफ्ट है, फिक्स शाफ्ट है, सेल्फ लाइनिंग बैरिंग है, हैवी बैरिंग है, मेन बैरिंग है, ठीक है, क्रैंक पिन बैरिंग है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरिंग्स यहाँ दिए हैं। अब यहाँ इनकी डिफरेंट ऑपरेटिंग वैल्यूज दी है। अब जिसके ऊपर ये मैक्सिममली ऑपरेट करते हैं, सबसे पहला दिया हुआ है प्रेशर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ठीक है। सो ये प्रेशर रेंज है जिसपे ये लोग जनरली ऑपरेट करते हैं, या फिर प्रेशर अपने को मैक्सिमम वहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं बैरिंग के डायमेंशन से, वो जनरली इसी रेंज में आता है। अब आती हैं वर्किंग वैल्यूज। नाउ हियर इज द वैल्यू ऑफ Zn अपॉन P। ये यहाँ Zn अपॉन P की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अपन इस वैल्यू को डिवाइड बाय 3 करके बैरिंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक। ये अपनी ऑपरेटिंग वैल्यूज दी है कि ये जो बैरिंग मशीन्स हैं वो इन कंडीशंस पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है। और अपन Zn अपॉन P जो अपन लोग ऑयल चूज करेंगे या जो स्पीड पे चल कराएंगे, जो प्रेशर पे चलाएंगे, उससे अपन इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अपनी अगर जो वैल्यू अपन ने सिलेक्ट की है वो इस Zn अपॉन P की वैल्यू से ज्यादा होती है, देन इट इज ओके। अगर नहीं है तो फिर हम इसको डिवाइड बाय 3 करके K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसके की इक्वल अपनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए अभी अपन बस ये देख लीजिए कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कंडीशंस के लिए अपन को Zn अपॉन P की वैल्यू यहाँ इस पर्टिकुलर टेबल से मिलेगी। Next is the critical pressure of the general bearing. ठीक है, critical pressure is the pressure at which the oil film breaks down. So the metal to metal contact begin is known as the critical pressure or the minimum operating pressure of the bearing. इसे ऑब्टेन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, P इज इक्वल टू Zn अपॉन 4.75 इंटू 10 पावर 6 डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी अपॉन सी का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन डी प्लस L न्यूटन पर mm स्क्वायर, वेयर Z इज इन kg पर मीटर सेकेंड, ठीक है। इस बेस के ऊपर अपन लोग यहाँ से क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अनदर डायमेंशनलेस नंबर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेयरिंग इज द सोमरफेल्ड नंबर. So Sommerfeld number is also a dimensionless parameter and used extensively in design for the general bearing. So mathematically Sommerfeld number is Zn upon P into D upon C square. ठीक है। सो ये अपना सोमरफेल्ड नंबर की वैल्यू हो गई। जनरली इसकी जो वैल्यू है वो अपन देखते हैं, लेते हैं 14.3 into 10 to the power 6. This is the value of Sommerfeld number generally we use. Now, next is the heat generated in general bearing. Now, the heat generated in a bearing is due to the fluid film and friction of the parts having relative motion. जो अपना फ्लूड जो बैरिंग के अंदर रोटेट हो रहा है, ऑयल जो रोटेट हो रहा है उसकी वजह से, और जो मेटल पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होती है। ऑयल जब कंटिन्यूअसली मेटल के ऊपर से रन होता है तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। सो इस हीट को अपन जो मैथमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस हीट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिससे अपन बोलते हैं Qg इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी. It is given in Newton per meter second or Joule per second, or we can say the watts. ये heat generated का formula है Qg is equal to mu Wv, where mu is the coefficient of friction, W is the load on the bearing in newtons, V is the rubbing velocity in meter per second. V को अपन देते हैं पाई डी एन बाई 60 से, वहां जहां D मीटर्स में है, N इज द स्पीड ऑफ जर्नल इन आरपीएम. रबिंग वेलोसिटी में हम हमेशा ध्यान रखना है कि रबिंग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगी, सो डी की वैल्यू जब पाई डी एन बाई 60 में अपन लोग रखेंगे वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, तभी अपने को हीट जनरेट मिलेगी. नाउ आफ्टर द थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, हीट विल बी डिसिपेटेड एट द आउटर सरफेस ऑफ द बेयरिंग एंड द सेम रेट व्हिच इज जनरेटेड इन द ऑयल फील्ड. ऑयल फील्ड जैसे ही अपना बेयरिंग जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है कि भाई अंदर का टेम्परेचर अभी बाहर के टेम्परेचर के कम था, अभी बराबर आ गया है, अब अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहा है. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अपना जो हीट है वो अंदर से बाहर की तरफ बहना स्टार्ट होती है, या ऑयल फिल्म से एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट होगी. सो यहाँ पे आता है हीट डिसिपेटेड बाय द जर्नल बेयरिंग. अब जर्नल बेयरिंग कितनी हीट डिसिपेट कर रहा है, कितनी हीट एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर रहा है. द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड will depend upon the temperature difference, size and mass of the radiating surface, and on the amount of air flowing around the bearing. अब हीट डिसिपेशन जो है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे पहला तो टेम्परेचर डिफरेंस,
बेरिंग का और एटमॉस्फेयर का या सराउंडिंग का। बेरिंग का साइज, मास ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है, कितना मास है रेडिएटिंग सरफेस में, और अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग अराउंड द बेरिंग, एयर के आसपास कितनी फैल रही है, उसके बेसिस के ऊपर अपना हीट डिसिपेटेड जो है वो डिपेंड करता है। नाउ फॉर कन्वीनियंस ऑफ बेरिंग डिजाइन, द एक्चुअल हीट डिसिपेटेड may be expressed in terms of the projected area of the journal. So heat dissipated by the journal bearing is given by QD is equal to C into A TB minus TA जूल्स पर सेकेंड और वॉट। जो हीट जनरेटेड है मेरी, जो सॉरी जो हीट डिसिपेटेड है मेरी QD, दैट इज इक्वल टू इक्वल टू CA TB minus TA joules per second or watts. Now, where C is the heat dissipation coefficient in watt per meter square per degree Celsius, A is equal to the projected area of the bearing in meter square, or we can say the L into D. TB is the temperature of the bearing surface in degree Celsius, and TA is the temperature of surrounding air in degree Celsius. ठीक है, सो ये चीज जो है ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से वी कैन आइडेंटिफाई द टेम्परेचर, difference. Okay, a temperature difference, or we can say the heat generated or heat dissipated by the bearings. अब जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू ओलेश ने डिटरमाइन की थी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है बेरिंग के टाइप के ऊपर, इसके वेंटिलेशन के ऊपर और टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ C इज गिवन इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस फॉर जनरल बेरिंग, taken as follows. Now, for unventilated bearing or still air, C की value is varies from 140 to 420 watt per meter square per degree Celsius, and for ventilated bearing, C varies from 490 to 1400 watts per meter square per degree Celsius. In this cases, the conditions around the bearings are very important. So we have to check that the bearing is in the ventilated area or the unventilated area. On that particular basis, we have to identify the value of C. Now, uh, it has been shown by the experiments that the temperature of the bearing TB is approximately midway between the temperature of the oil film TO and the temperature of the outside uh, outside air. So TB minus TA is equal to half TO minus TA. ठीक है, ये एक एम्पेरिकल रिलेशन हो गया। दिस इज एक छोटा सा रिलेशन है जो कि अपने को रेगुलरली रिक्वायर्ड रहता है। TB minus TA is equal to half TO minus TA. Now, for well-designed bearing, the temperature of the oil film should not be more than 60 degrees. 60 degrees मैक्सिमम ऑयल फिल्म टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इस बेसिस के ऊपर जो आपकी विस्कोसिटी है वो बहुत रैपिडली जो है वो डिक्रीज होती है, और बेरिंग जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सो द टेम्परेचर ऑफ ऑयल फिल्म इज ऑफन कॉल्ड द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द बेरिंग। बेरिंग की जो ऑयल फील्ड का टेम्परेचर है वो जनरली क्या बोलते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द बेरिंग को भी अपन उसको बोलते हैं। नाउ इन केस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ऑयल फिल्म इज हायर देन द बेरिंग, इट इज कूल्ड बाय द सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द कॉइल्स बिल्ट इन द बेरिंग। अब एक ऑप्शन तो ये है कि अगर हीट ज्यादा हो गई है तो उसको अपन पानी से ठंडा कर दें। बेरिंग के चारों तरफ जैकेट्स में अपन वाटर रन कराए, कोल्ड वाटर रन कराए, जैसे कि अपने इंजन जैकेट्स में होता है, ठीक है, और उस पानी से अपन बेरिंग को ठंडा करा दें। और द सेकंड थर्ड थिंग इज द मास ऑफ द ऑयल रिमूव बाय द हीट generated the mass of the oil remove the heat generated at the bearing may be obtained by equating the heat generated to the heat taken away by the oil, या फिर आपका जो लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट इटसेल्फ वर्क्स एज अ कूलिंग एजेंट ऑल्सो, और वो वहां पे ऑयल को कूल करे। सो ऐसे केस में अपने को जो ऑयल का मास लगेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट की हीट को रिजेक्ट करने के लिए, दैट वाज गिवन बाय QT इज इक्वल टू MST। ऑयल का जो मास है, जो हीट जनरेटेड बाय द ऑयल, उसको निकालने के लिए जो अपने को मास रिक्वायर्ड है उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। QT इज इक्वल टू MST। नाउ QT जो है वो ये वाली हीट है जितनी अपने को रिमूव करनी है। नाउ अब ये डायरेक्टली हीट जनरेटेड भी हो सकती है और हीट जनरेटेड माइनस हीट डिसिपेटेड भी हो सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन में वो किस टाइप की कंडीशन रख रहा है, उसके बेसिस पे अपन
फाइंड आउट करेंगे या उसको फाइनलाइज करेंगे कि मेरे को इसमें करना क्या है. सो वेयर m is equal to mass of the oil in kg per second, s is the specific heat of the oil, and t is the difference between the outlet and inlet temperature of the oil in degree Celsius. ठीक है. स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल जनरली अपन लोग लेते हैं 1840 से 2100 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस में. वी जनरली टेक द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल बिटवीन 1840 to 2100 joules per kg per degree Celsius. Okay, so that's all for today, students. We will see the last. We will see rewind the procedure for the design of general bearing in the another class. So that's all for today. Thank you. Happy learning.